तो डाटा ड्रिवन सिस्टम, हम एक डाटा ड्रिवन सिस्टम को कैसे बनाएंगे? ये पंखा बंद करते हैं. So how we are going to build a data driven system? So today we are going to explore different linear classification models for building data driven systems. So linear classifications we saw in a lot of detail in our previous class. So linear classification was last class where at the end I wrote down a list of linear classification models. Linear classification में यहाँ linear से क्या मुराद है? Line. So basically what our hypothesis here था कि our data can be split by a line, which is a very simplifying hypothesis. और initially हम ये देखेंगे कि how good we can do it, and it will turn out that we can't do too well using, क्योंकि realistic data कहीं भी आपका directly line के जरिए separable नहीं होगा. So then आगे चलकर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट किस्म की फीचर इंजीनियरिंग करते हैं so that कि डाटा किसी तरीके से linearly manifold में आ जाए. अगर नहीं आता तो then what we do is that we will do different types of transformations using neural networks. So अगर आपको याद लास्ट इमेज क्लासिफिकेशन याद हो तो हमने कैट को क्लासिफाई करना था and then we went and see the KQS labels. Now in a linear classification, in a classification algorithm which we are going to see, we are doing the 4 components अगर आपको याद हो. So the first was a score function. So in this case our classification problem is a multi-class classification problem. तो हमारा जो score function होगा it will be set of W's. यहाँ पे X मेरा input image होगा. अगर आप याद हो लास्ट क्लास हमने ये कहा था कि just class image. X मेरा input image होगा, W will be my learning parameters and V will be my bias terms. Now लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ ये है, यहाँ मेरे पास एक linear classifier नहीं होगा. So जितनी classes होंगी उतने मेरे पास क्या होंगे linear classifier. So this W is not a vector, it's a matrix. ठीक है. For example अगर मेरे पास 3 classes हैं, अगर मेरे पास एक class cat है, दूसरी क्लास मेरे पास dog है और किसी मसला भी मतलब आप कर सकते हैं. So एक क्लास में मेरे पास cat और दूसरी dog है और तीसरी मेरे पास एक्सपोज क्लास जो है वो frog है. So now I have 3 classes. तो इन 3 classes के लिए मुझे 3 different linear classifiers build करने हैं. एक classifier will be one versus all ले रहा हूँ तो एक classifier will be responsible for differentiating between cat and all other classes, and if it's dog to dog versus cat and frog, and if frog to frog versus cat dog, so that will be 3 classifiers. So यहाँ पे W X मेरा input image होगा, W मेरे weights होंगे और weights will be a matrix. मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में मेरे पास हर रो के अंदर डिफरेंट जो क्लास के क्लासिफायर्स हैं वो पढ़ेंगे. मेरी जो पहली रो होगी इसके अंदर जो वेट्स पढ़ेंगे दैट विल बी W cat, जो सेकंड होगी दैट विल बी W dog और जो आखिरी रो होगी W frog. ये मेरा लिनियर क्लासिफायर किसका, कैट का, ये डॉग का, ये क्या होगा फ्रॉग का. इसी तरह ये जो बायस है ये वेक्टर है. वेक्टर हर क्लासिफायर का अपना बायस वेक्टर होगा. So dog का अपना बायस वेक्टर होगा, कैट का अपना और फ्रॉग का अपना. So given an x image, I will take a dot product of this x with all these weights, and उसके अंदर मैं एक बायस टर्म ऐड करूँगा. और बायस टर्म का साइज वही होगा जो मेरे नंबर ऑफ क्लासेस. मैं इन सब का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा and that will give me the result. This will be basically my confidence of each classifiers के जो पहला जो नंबर यहाँ पे आएगा that will basically the confidence of W classifier कि ये जो मेरे पास इनपुट इमेज आ रहा है ये क्या है, कैट है. और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो एक आ रहा होगा that is the confidence of dog classifier कि जो इनपुट इमेज आ रहा है ये डॉग है. तो जिस क्लासिफायर का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होगा वो हमारी टारगेट क्लास होगी. अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, याद है सबको, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली वी आर प्रोजेक्टिंग इन दैट स्पेस. तो यहाँ पे वी आर प्रोजेक्टिंग दिस फर्स्ट इन दिस W स्पेस और देख रहे हैं W की स्पेस में वो कितना कॉन्फिडेंस है. Then we are taking this and then we are projecting it in the dog space और फिर कैट वाली डायमेंशन के क्रॉस और जिसका सबसे ज्यादा हम वो उसको फाइनल लेवल दे देंगे. तो यहाँ अब हमारा गोल बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कि हमारा यहाँ पे जो गोल है वो ये W और V लर्न करने में होता है और इन लर्न्स करने के लिए हमें उसके स्पेसिफिक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा. एक
हाइपोथेसिस या कॉस्ट फंक्शन डिफाइन। बी जो है एक क्लास के लिए नियत नंबर होगा, हर क्लास के लिए बेसिकली आपका अब 3 क्लासेस है, 3 लाइन्स होंगी बेसिकली, तो हर लाइन का अपना सी होता है। तो बी इज बेसिकली सी फॉर ईच एंड एवरी क्लास। तो बी की डायमेंशन, डब्ल्यू की डायमेंशन होगी, लेट्स सपोज एक्स की डायमेंशन है के, तो इस डब्ल्यू की डायमेंशन होगी 3 क्रॉस के, और इस बी की डायमेंशन होगी 3 क्रॉस 1। सो दे विल बी वाइज टर्म फॉर ईच एंड एवरी क्लास। ये बात सबको समझ आती है? इससे के नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, के नंबर ऑफ फीचर्स है बेसिकली आपके। नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर मैं इमेज की बात करूँ, ठीक है, करेंट वी आर टेकिंग रॉ इमेज एज एन इनपुट। क्लियर? ये बात सबको क्लियर है? सो वी विल टेकिंग दिस, और दिस इज नाउ आवर स्कोरिंग फंक्शन। अब स्कोरिंग फंक्शन के अंदर मेरे पास जितनी क्लासेस होंगे उतने क्या होंगे, डब्ल्यूज होंगे। मैं हर स्कोरिंग फंक्शन को एज, सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरा डाटा इमेज 3072 डायमेंशन है, अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो तो हमने कहा था सिफार 10 के अंदर हर इमेज जो है वो 32 क्रॉस 32 पिक्सल का होता है, 32 क्रॉस 3, दैट ट्रांसलेट इनटू 3072 एंड दैट विल बी व्हाट। और अगर मेरे पास 10 क्लासेस हैं तो इट विल बी डब्ल्यू विल बी 10 क्रॉस 3072, ठीक है। और बी की जो मेरे पास डायमेंशन होगी दैट विल बी 3072, ओह सॉरी 10 होगी, बी की डायमेंशन होगी 10 क्रॉस 1, जितनी क्लासेस हैं उतनी उसकी डायमेंशन होगी। सो दैट्स रिटन ओवर हियर। ओके, सो आप दैट्स एग्जांपल क्लियरली शोज के हम जो करने जा रहे हैं इसमें। सो गिवन एन इनपुट इमेज, so now that's why W ये मेरा इनपुट इमेज है, ये मेरा पहले W है, ये एक क्लास का, अगली क्लास का, अगली क्लास का। So I will simply take the dot product of it with this, और उसमें बायस टर्म ऐड करूँगा, these are the scores। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर किसका आ रहा है? So ये it's a wrong classification because original जो है it's a class। So that's अब हमारा गोल ये होगा कि हमें इस तरह से W लेन करने हैं कि वो कैट को क्या कहें, कैट कहें, डॉग को क्या कहें, डॉग, और so on। So what can a linear classifier do? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि linear classifier बेसिकली होता है कि आप उसकी प्रोजेक्शन ले रहे होते हैं। So जब आप W cat के साथ ले रहे होंगे तो you are taking the projection of that cat image across that space। तो जिसकी प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा आएगी that will be the और ये जो W's है आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ मीन टेम्पलेट। जिसका जिसके साथ ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट होगा इसका मतलब ये कि वो टेम्पलेट के साथ आप मैच कर रहे हैं। सो यू कैन इंटरप्रेट दीस W's एज टेम्पलेट्स एज वेल। सो एक W जो कैट का W होगा दैट विल बी समवट, अगर आपको W है तो उसकी डायमेंशन भी तो 3,000 क्या है, 72 है, तो आप उसे रीशेप कर सकते हैं 32 क्रॉस 3। तो अगर उसे 32 क्रॉस 3 अगर रीशेप करेंगे तो इट विल वंस अगेन टर्न आउट टू बी एन इमेज। अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको वो एक एवरेज कैट नजर आएगी, और अगर आप डॉग को लेंगे तो आपको एक एवरेज डॉग का इमेज नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिफरेंट क्लासेस के एवरेज इमेजेस हैं। अगर आप हॉर्स पे गौर करें तो समवट आपको शायद देता है कि हॉर्स है एवरेज इमेज। तो बेसिकली जब हम डॉग प्रोडक्ट ले लेते हैं तो अगर आप उसे स्केल करते हैं तो टर्न्स आउट टू बी कोसाइन से आएगी याद है सबको। या आप अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ इट। तो वो बेसिकली आप ये देखेंगे किसके ज्यादा सिमिलर है। सो टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इमेज विद ऑल द वेट्स यू आर लुकिंग फॉर दिस मैक्सिमम सिमिलैरिटी। तो जिसके साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा और सबसे हाईएस्ट आ रहा हो। सर इस केस में टेम्पलेट आप किसे कह रहे हैं? टेम्पलेट W's को कहते हैं। तो आप जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अगर आपको याद है सबको ये डॉट भी किसकी इक्वल होता है? norm of A, norm of B, cos of theta. अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, if you normalize them both of them, तो you are actually looking at cosine similarity. So you can interpret that as a template. तो आप cosine similarity maximum कब होती है? जब वो close to 1 होती है। ठीक है, तो if you go and normalize, आप इनपुट इमेज को भी normalize कर लें और इसको भी normalize कर लें, सही टाइप दोनों का नॉर्म क्या हो 1 हो तो आपको जो W होगा that will act as a template. ठीक है, वो आपके लिए template और वो calculating some type of cosine similarity.
ये बात सबको समझ आती है? ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली यूज दिस W एज अ मैचिंग क्लासिफायर. तो W आप हमेशा याद रखें, जब भी आप लीनियर क्लासिफायर ट्रेन करते हैं तो आप इसमें एक टेम्पलेट डिजाइन करने की कोशिश करें. तो आप इसमें एक यू आर, अगर इसको आप इस तरीके से भी देखें, A डॉट B इज इक्वल टू A क्रॉस, अगर आप याद हो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इट इज अ प्रोजेक्शन, तो वो उसके नॉर्म क्या ले रहा होता है, प्रोजेक्शन ले रहा होता है. तो जो आपका W जो है बेसिकली दैट इज योर टेम्पलेट वेक्टर. तो जितना उस प्रोजेक्शन के अंदर जो उसके क्लोजेस्ट आएगा उतना ज़्यादा उसका जो है ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो. क्लियर बात समझ आती? ओके, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग. सो रियल लाइन में नहीं आप करेंगे क्या कोशिश करें तो इट विल बी अ लाइन. तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक तरफ क्या होना चाहिए, एक भी होनी चाहिए, बाकी तरफ दूसरी क्लासेस होनी चाहिए. एक तरफ क्या होना चाहिए, कार होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उसके दूसरे क्लासेस. और W जो है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा. W उस प्लेन का क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर. इसी तरह DL के केस में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपका क्लासिफायर ऐसा होना चाहिए, इस तरह लागू करना चाहिए. एक तरफ सारी DL की क्लासेस पढ़नी और बाकी सारी क्लासेस उसके दूसरे साइड पे पढ़नी. Everybody agrees on this? Okay. So, जी. सर जो आपने टेम्पलेट वाली बात की है, फॉर एग्जांपल कैश की इमेज और डॉग की दोनों में स्काई है जी जी करने का उस कलर को बिल्कुल ऐसे ही है. दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रॉब्लम कि कैट और डॉग जैसे बैकग्राउंड में स्काई है तो अगर इमेज आ रहा है तो उसमें अगर ज़्यादा स्काई और ज़्यादा स्काई अगर टेम्पलेट के अंदर कैट की तरफ है तो वो उसे उस तरफ इंक्लाइन कर देगा. तो इससे बायसनेस में फर्क पड़ेगा. बायसनेस इन द सेंस तो वो जो B वेक्टर है बी बेसिकली अगर आप याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक ओरिएंटेशन की बात करेंगे, एक ऑफसेट की बात करेंगे. तो जो आपका W वेक्टर होता है बेसिकली ये उसकी ओरिएंटेशन बता रहा होता है तो आपका, और B जो है ऑफसेट बता रहा होता है कि ओरिजिन से कहाँ लाइन कर रहा है. ठीक है, अगर आप B को 0 रख रहे हैं तो यू आर फोर्सिंग योर प्लेन टू गो थ्रू द ओरिजिन. सो यू आर इनफैक्ट इन्फोर्सिंग इट टू द, और अगर वैसा पॉसिबल ना हो तो वो बहुत ज़्यादा अंडरफिट करना शुरू करता है. फ्लेक्सिबिलिटी यानी वो उसे अंडरफिट करना शुरू करता है. तो B इज बेसिकली कि आप अलाउ कर रहे हैं कि हर क्लास में क्लासिफायर है इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और W बेसिकली आपकी उस ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, उस लाइन को कंट्रोल कर रहा है. तो ओरिएंटेशन ऑफ दैट लाइन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट W. बाईस की हम पावर हाई कर देते हैं. क्या जब 22 जो होती है तो नहीं, इट्स लीनियर कांस्टेंट. बाय से बेसिकली योर सी इट्स इंटरसेप्ट कि आपका जो लाइन है वो कहाँ में कट कर रही है. अब पावर हाई करने से कुछ नहीं होगा, वो उसकी स्केल आप ये हायर प्लेस पे प्लेस कर दें और कुछ भी नहीं होगा. नथिंग रॉन्ग. वोल्टेज वो डाइवर्ट हो जाएगी. डाइवर्ट होगी लेकिन फ्रीडम ऑलरेडी आपने से दी हुई है. देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग टेकिंग द हायर ऑर्डर. नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप स्केल ले रहे हैं तो आप उस केस में यू हैव जस्ट गेट रीड ऑफ. अब आप उसे फोर्स कर रहे हैं हमेशा से पॉजिटिव स्पेस में, जो कि टोटली रॉन्ग है. जी और भी सवाल की नॉर्मलाइजेशन करते हैं. है? पिक्सेल्स की नॉर्मलाइजेशन के बाद बोलिए. अच्छा, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. यस, कि हम इमेज को नॉर्मलाइज करेंगे, जब भी हम इनको देंगे हम इंश्योर करेंगे इट शुड बी नॉर्मलाइज इन सम स्पेसिफिक रेंज. पहले से ही वो एक रेंज नहीं है. ये भी बहुत बड़ा सवाल है. नॉर्मलाइज दो मीनिंग आप एक है स्टैंडर्डाइज करना. नॉर्मलाइज यानी कि वो आपकी जो पिक्सल वैल्यूज हैं यूजुअली पहले ही एक खास रेंज में होती है. मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 255 और 0 से. सो यूजुअली आप उसका मीन 0 ले लेते हैं सो दैट यू शुड हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दैट अलाउज योर ग्रेडियंट डिसेंट टू वर्क मोर बेटर. लेकिन टेक्निकली आप स्केल नहीं करते, यानी कि आप उसे उसकी यूनिट लेंथ में लेके नहीं आते. और भी सवाल? सो नाउ यू विल हैव W यानी जितनी क्लासेस हैं उतने W's होंगे आपके पास, और हर W बेसिकली एक लाइन भी डिजाइन करा होगा उस फीचर स्पेस पे. और आपका गोल ये है कि हर W इस तरह से डिजाइन किया जाए कि एक क्लास एक तरफ होगी और बाकी सारी क्लासें उस लाइन की दूसरी तरफ होगी. सो बायस्टिक में आपको सबको समझ आ गई कि बायस्टिक क्या है. सो व्हाट्स व्हाई वी नीड द बायस्टिक. बायस्टिक इज बेसिकली आप उसे फोर्स नहीं करेंगे तो आप फोर्सिंग तो आपके तमाम निकाल प्लेन शुड पास थ्रू द ओरिजिन. और समटाइम्स हम ये करेंगे कि बायस को एक्स्ट्रा अलग से ऐड करने की बजाय हम उसको +1 एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा हम एक्स्ट्रा फीचर 1 ऐड करके. लेकिन यूजली न्यूरल नेटवर्क के केस में हम बायस को सेपरेट रखने की कोशिश करेंगे. अगर आप सिंपल लीनियर क्लासिफायर की बात करते हैं तो हम बायस को
समटाइम कंबाइन करेंगे, लेकिन अगर आप न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो हम बायस को सेपरेट रखना चाहेंगे। उसकी एक खास रीज़न है, क्योंकि जब आपका नेटवर्क बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है तो हम बाहर में जाके उसके ऊपर कुछ रेगुलाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। याद है सबको L1 नॉर्म एंड L2 नॉर्म की रेगुलाइजेशन आगे से हम डिस्कस करेंगे, तो हम वो रेगुलाइजेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यूजली आप रेगुलाइजेशन जो अपनी बायस टर्म पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ नॉन बायस वेट्स के ऊपर जो है ना वो रेगुलाइजेशन अप्लाई करते हैं बायस में। तो अगर आपका नेटवर्क बहुत डीप और आपने बायस मिक्स किया तो आपके लिए कोडिंग करना बहुत आसान बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कीप आवर बायस टर्म इन न्यूरल नेटवर्क से सेपरेट फ्रॉम वेट टर्म्स। So that's how. Now that was our first part कि हम स्कोरिंग फंक्शन, तो आपको सबको स्कोरिंग फंक्शन क्लियर है? So junior class में किसी को क्वेश्चन हो? Everybody agrees on this? So now we have to define a loss function or a cost function. So there can be many cost function. तो हमने for example परसेप्ट्रॉन के केस में loss function देखा, SVM के केस में loss function देखा, logistic regression के केस में हमने एक loss function देखा, लेकिन they were all defined for the binary class. Now we have to extrapolate those loss functions for multi-class classification problems. So यहाँ अब I'm going to extrapolate those loss functions. तो जो पहला loss function हम देखने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे multi-class SVM. So multi-class support vector machines. So I will start doing a motivation from binary class support vector machine and then मैं उसको multi-class support vector machine के ऊपर जो है आपको लेके जाऊँगा. So before doing that, हमारे loss function का goal क्या है? Why do we need loss function? Loss function is basically used to हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं उन्हें इनकोड करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम क्या चाहते हैं हमारे एल्गोरिथम से, what type of weights we want। और हम ये चाहेंगे कि जब फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास हम ये चाहेंगे कि अगर कैट कहीं जाए तो वो हमारा जो लॉस फंक्शन है इट शुड बी सच दैट कि अगर हमारा क्लासीफायर उसे कैट की जगह कोई और क्लास कह रहा है तो इट शुड बी पेनलाइजिंग दैट। बात समझ आ रही है सबको? और अगर उसे क्लास कैट को कैट ही कह रहा है तो इट शुड बी लिटिल लीनियंसी ऑन दैट एक दिस इज अ वन लॉस फंक्शन। सो उसके अलावा आप उसके अंदर और प्रेफरेंसेस भी ऐड करें। आप एक प्रेफरेंस ये भी ऐड कर सकते हैं लॉस फंक्शन के अंदर कि सिर्फ उसे कैट ही लगे बल्कि उसे एटलीस्ट इतना दूर जरूर बाकियों से खेल ताकि हमारी जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस वो क्या है इंप्रूव हो। एसवीएम और परसेप्ट्रॉन में डिफरेंस क्लियर है सबको? सो परसेप्ट्रॉन ट्राइज टू फाइंड एनी लाइंस, और अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि एसवीएम ट्राइज टू फाइंड द लाइन विद द मैक्सिमम मार्जिन। तो उस मैक्सिमम मार्जिन के पीछे जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी कि हम यही चाहते थे कि हमारे पास मैक्सिमम जनरलाइजेशन अचीव की जाए। एंड वी सेड दैट इफ वी हैव अ मैक्सिमम मार्जिन and we prove that कि अगर हमारा मैक्सिमम मार्जिन हो तो we are ensuring that we are achieving the maximum generalization performance we can achieve। ये बात क्लियर है सबको? ओके, सो हमारा जो लॉस फंक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा दो चीजों का, हमारा जो स्कोर्स आ रहे हैं और हमारा क्या आ रहा है लेवल्स। सो हमारे लेवल्स क्या है कि हम ये लॉस फंक्शन वही देखेंगे ना कि हमने जो लेवल प्रेडिक्ट या जो रियल लेवल्स अगर आपस में मैच ना हो तो हमें पेनल्टी ऐड करनी चाहिए, और अगर आपस में मैच हो तो हमें पेनल्टी ऐड नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट अ लॉस फंक्शन। So your loss function will be basically an average loss across all your examples। यानी आपका जो loss function है वो average loss होगा तमाम examples के ऊपर, and it will be sum of two components। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं बेटा लॉस टर्म कहेंगे और एक को हम दूसरी टर्म रेगुलाइजेशन। रेगुलाइजेशन अगर आप याद हो तो इट इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट आवर प्रेफरेंसेस, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लासिफायर्स फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ रेट्स। अगर हम किसी किस्म की रेगुलाइजेशन अप्लाई नहीं कर रहे तो हम उसे खुली छुट्टी दे रहे होते थे, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। और उस रेगुलाइजेशन की वजह से हम अच्छा मैं आगे तक शायद थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँ कि रेगुलाइजेशन हमेशा जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी केसेस जहाँ रेगुलाइजेशन लीड्स टू नॉट डजंट लीड्स टू अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपके पास दोनों टर्म्स होंगी, आपके पास डाटा लॉस टर्म भी होगी और आपके पास क्या होगी रेगुलाइजेशन टर्म भी होगी। रेगुलाइजेशन टर्म जो है वो आपकी प्रेफरेंस को इनकोड कर रही होगी कि किस किस्म के रेट से आप और उसको इस्तेमाल करते हो आप अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को कंट्रोल कर रहे हो, और लॉस टर्म बेसिकली आप ये इंश्योर कर रहे होंगे कि किस किस्म की एरर्स के ऊपर पेनल्टी ऐड करेंगे। क्लियर है सबको? ओके, सो I am first going to explain a binding class SVM। अगर आपको binding class SVM का loss तो our total loss function will be L of I for sum of I 1 over n plus lambda times
रेगुलराइजेशन ऑफ डब्ल्यूज। ये सबको समझ आता है? ठीक है, हमारा ये टोटल लॉस होगा, दैट विल बी लॉस, एवरेज लॉस of all example plus lambda times some generalization on W's. That's what we saw earlier. So ये NFI is basically loss incurred due to a single training example. तो अब NFI यदि आपको याद हो तो बाइनरी केस इसमें भी क्लास में याद था क्या 0 का बोले 1 minus y of I बोले x W transpose of x of I नहीं था ना? So that was what we saw. यहाँ पे हमारा गोल क्या था? हम ही चाह रहे थे बाइनरी क्लास एसवीएम के अंदर हमारे पास 2 क्लासेस थी यहाँ पे, यहाँ हमारे पास 2 क्लासेस थी, एक हमारे पास कौन सी क्लास थी? पॉजिटिव, और एक हमारे पास क्या थी? नेगेटिव क्लास। और हम यहाँ पे ये चाह रहे थे कि हमारी पॉजिटिव क्लास की एग्जाम्पल जो है वो नेगेटिव क्लास से एटलीस्ट कितनी दूर होनी चाहिए? टेक्निकली ये 1 बेसिकली हम रेगुलाइजेशन के जरिए से कंट्रोल करते थे। तो हम ये कह रहे थे कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो एक दूसरे से क्या होती है दूर। That's what we were doing. यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस थी, तो हम ये कह सकते थे कि एक ही बाउंड्री होती थी, तो हम ये कहते थे कि एक क्लास एटलीस्ट दूसरे से क्या होनी चाहिए 1 दूर होनी चाहिए। अब हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम ये चाहेंगे कि जब हम एक क्लास कैट में कहें तो कैट जब हम किसी को कहें तो इट शुड बी एटलीस्ट डेल्टा अवे फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस so that we can ensure the maximum generalization performance. तो जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल को कैट करूँगा तो आई शुड से दैट कि अगर वो बाकी तमाम एग्जाम्पल्स जो कैट की नहीं है उससे एटलीस्ट 1 दूर हो तो 1 दूर होनी चाहिए। अगर 1 से दूर नहीं है तो जितना डिफरेंस होगा वो हम क्या ऐड करेंगे? पेनल्टी ऐड करेंगे। बात समझ आती है सबको? सो नाउ NFI फॉर दिस पर्टिकुलर केस विल बी So, हमने अभी 3 क्लासेस देखी हैं। So, लेट्स सपोज मेरी जो पहली एग्जांपल है वो फ्रॉग को बिलोंग करती है। किसको बिलोंग करती है? फ्रॉग को। So, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ये चाहूँगा कि जो फ्रॉग और कैट का डिस्टेंस है वो भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और फ्रॉग और जो डॉग का डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अगर वो उससे छोटा है तो शुड बी एडिंग द पेनल्टी होगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन द लॉस फंक्शन। So मैं चाहूँगा कि max of 0 comma f of dog minus f of frog for plus 1 plus max of zero comma f of cat of I minus f of So this is my multi-class loss function. यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि given I example को अगर मैं dog कह रहा था, ठीक है, तो तीनों रिस्पॉन्स आएंगे for given class, तीनों रिस्पॉन्स आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि f of dog और f of frog का जो डिस्टेंस है एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसी तरह f of cat of I और f of frog of I के दरम्यान डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 होना चाहिए। सो आप इसको ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग में लिखा, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन डिफरेंट फॉर्म। मैं रिपीट कर देता सो वो सिंगल क्लास थी। अब मल्टी क्लास केस में जरा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 इट बिलोंग्स टू फ्रॉग क्लास। मेरी एग्जांपल 1 किसको बिलोंग करती है? फ्रॉग क्लास। अब एग्जांपल 1 को जब मैं तीनों क्लासिफायर्स से गुजारूं, ठीक है, सो मेरे पास एक है W1 जो कि W फ्रॉग है, और क्या है W2 W डॉग है, और W3 जो W क्या है? कैट है। ये बात समझ में आ रही है? सो ये मैं 1 2 3 लिखूं या FDC लिखूं? समझ आ रही है सबको? सो W1 W2 एंड W3 दीज आर माय 3 वेट्स। तो मैं क्या चाहूंगा कि जब मेरी पहली एग्जांपल इन W's में से गुजरे, सो मैं
एग्जाम्पल आ गई, दिस इज एग्जाम्पल 1, दिस इज x1. सो x1 को मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा w1, w2 और w3 के साथ. तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं कह देता हूँ f1, f2, f3. दैट इज द रिस्पॉन्स. डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या कहना f1, f2 एंड f3. अब मैं ये चाहूंगा कि अब अगर ये एग्जाम्पल फ्रॉग क्लास को बिलोंग करती है तो f1 f2 से एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 दूर होना चाहिए. और f1 f3 से, सिर्फ f2 से नहीं, तमाम की तमाम क्लासेस से उसे कितना दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट डेल्टा दूर होना चाहिए. लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था डेल्टा को हम w's के जरिए से क्या करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश. तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, उसे दूर होना चाहिए. अंडरस्टैंड दिस? सो अब अगर एटलीस्ट 1 f1 और f2 का डिस्टेंस एटलीस्ट 1 नहीं है तो जितना डिस्टेंस है वो हम किसके तौर पे, पेनल्टी के तौर पे अपने कॉस्ट फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे. इसी तरह f1 और f3 का डिस्टेंस अगर एटलीस्ट 1 दूर नहीं है तो उसे हम क्या ऐड करेंगे, पेनल्टी के तौर पे ऐड करेंगे. बात समझ आती है सबको? सो नाउ आई विल राइट इट इन अ लिटिल सिंप्लीफाइड वे. सो L1 will be loss of class 1 will be equal to max of 0 comma बोले f2 minus f1 plus 1 plus max of 0 comma f3 minus f1 plus 1. अब जरा गौर से देखें, अगर f2 f1 से एक से ज्यादा दूर है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एंट्री आएगी. यहाँ पे आएगी नेगेटिव एंट्री. और अगर वो नेगेटिव एंट्री 1 से बहुत छोटी है तो दिस टर्म विल गो लेस देन 0, तो आप 0 पेनल्टी आएगी. लेकिन अगर f2 f1 से बड़ा है, लेट्स सपोज आप f2 आता है 12 और f1 क्या है 10, यानी आप कह रहे हैं कि f2 ज्यादा कॉन्फिडेंट है. f2 कौन सी क्लास है, तो आप ये कह रहे हैं कि कैट क्लास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फ्लॉप से 2 टाइम ज्यादा कॉन्फिडेंस है. तो हम 2 plus 1 जो हमारी बाउंड्री थी प्लस 3 की पेनल्टी ऐड करें. ये गलत है क्या, ये आपको समझ आती है? लेकिन अगर f1 कहता 8 माइनस क्या होता है, -2 plus 1 -1, तो हम क्या पेनल्टी ऐड करेंगे, 0 की पेनल्टी ऐड करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल और क्लास. ये बात सबको समझ आ रहा है? तो इसी तरह एक क्लास के लिए नहीं है, इसीलिए हम सारी टर्म्स के लिए हर एग्जाम्पल के लिए तमाम देखेंगे. तो हर सिर्फ उसे फ्रॉग वाली जो क्लासेस हैं उन्हें न सिर्फ डॉग से दूर होना चाहिए बल्कि कैट से भी. हम उसे बया कर तमाम क्लासेस से देखें. तो सम इज ऑल ओवर द क्लासेस एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ. वो तो ठीक है, मुझे से f1 तो उसका है ना, फ्रॉग कैसे, f1 फ्रॉग है, तो जो पहली एग्जाम्पल है वो फ्रॉग क्लास को बनाओ. पता कैसे है, इसलिए लेबल आ रहा है. वो तो ठीक है. सिर्फ अगर लॉस फंक्शन में हम y यूज करते थे, ये जो y f1 हमारा, अच्छा f1 हमारा सो दिस इज f1 हमारी टू y क्लास को बुलाता है, वो हमें पहले से पता है. मेरी एल्बम में पहले से आपको बता दिया कि एल्बम के कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. एग्जांपल 1 बिलोंग्स टू फ्लॉग क्लास, तो वो मुझे पता है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर? सो दिस इज माय लॉस टर्म फॉर एग्जांपल 1. नेक्स्ट सपोज मेरी जो दूसरी एग्जांपल है वो कैट क्लास को बिलोंग करती है. दूसरी एग्जांपल कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, कैट. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लॉस ड्यू टू एग्जांपल 1 था. L2 किसकी इक्वल होगा, देखिए L2 के टर्म क्या होगी. L2 belongs to L2 में कौन सी क्लास हुई, कैट क्लास, जो कि F3 है. F1 frog, dog, लिखे मैं ये लिख दूँ. L2 belong to cat class. ठीक है. L2
एग्जाम्पल नंबर 2 है जो किसको बिलोंग करती है, कैट क्लास को। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन गौर से समझ। ये कैट का बाकी इन दोनों के साथ जी बिल्कुल, अब मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा कैट का बाकी दोनों के क्लास के साथ डिफरेंस जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है, वो एटलीस्ट कितना दूर होना चाहिए, 1 दूर होना चाहिए। सो उसके लिए मैं L2 का लॉस फंक्शन ये ऑफिस आपने लिखा, आपने लिखा नहीं, ये आप क्या जी वो नंबर अक्रम था, पहले आ जाएगा क्या आ जाएगा पहले बोलो, माइनस क्या है, बोलो इट विल इक्वल मैक्स ऑफ 0 कामा एफ डॉग क्या है, F2 माइनस F3 प्लस 1 प्लस मैक्स ऑफ फिर 0 कामा फिर F1 माइनस F3 प्लस 1। क्लियर बात सबको समझ आ गई? सो अब इसको मैथमेटिकली सबको समझ आ गया, बहुत आसान है, क्लियर है सबको? सो बेसिकली व्हाट वी आर वन थिंग कि जिस ट्रेनिंग सेट में जिस क्लास को एग्जांपल बिलोंग करती है, हमारा क्लासिफायर शुड बी गिवन सच एज कि वो उसको एटलीस्ट 1 दूर के बाकी तमाम क्लासेस में। ये बात क्लियर है? सो लॉस फंक्शन सबको समझ आ गया? सो दिस इज मल्टीक्लास एसवीएम लॉस। जी सर F1 F2 F3 की वैल्यूज आ रही हैं सर, इसमें 22 भी ऐड होगा? ये उनको ऐड करके आया। अच्छा तुम्हारा तुम अभी तक नहीं अटके हुए, हमें कैसे पता चला? नहीं मैं वो नहीं समझ आ गई वो बात तुम्हें? वो बात नहीं आ जी, रही। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब 3 क्लासेस हैं हमारे पास, तो हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस प्लस होंगे या 3 डिफरेंट टर्म्स, 2 डिफरेंट टर्म्स ऐड होंगे। नहीं सर, वो मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि जैसे एक क्लास है हमारे पास डॉग की, ठीक है, हमारे क्लास में डॉग को सही कह रहा है, डॉग के लिए सही ट्रेन हुआ, वही कैट के लिए हमेशा कहते थे फ्रॉग है। हाँ। तो सर उसको तो अगर डॉग के लिए सही ट्रेन हुआ तो डॉग के लिए एक मिनट ऐड होगी। अब उसका फोकस सारा ये होगा तो वो कैट वाले क्लासिफायर से 3 डिफरेंट ट्रेन हो रही है ना, बड़े तो 3 क्लासिफायर ट्रेन हो गए। हाँ, तो सर फिर वो सिर्फ उस वाली क्लासिफायर को छेड़ेगा ना, जिसका मतलब है जी कि बिल्कुल, डिफरेंट लॉसेस होने चाहिए। 3 डिफरेंट लॉसेस हैं, आप उनको ऑपरेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। सर L1 L2 में प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपका एवरी लॉस जो है वो सम ऑफ ऑल एग्जांपल्स है। I started from here. The total loss is average loss of all examples. And for one example, this is your loss term. This is for one example. This is for one example 1. This is for example 2. And you will do it for all examples. हर एग्जाम्पल अगर वो ट्रू क्लास अगर वो सही होगा तो कोई लॉस टर्म में ऐड चीज ऐड नहीं होगी। ये बात सबको क्लियर है? जी किसी को ना समझाइए। डिपेंडिंग ऑन द लेवल आप देखेंगे कौन सी, क्योंकि आपके पास हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल का लेवल है, तो आप डिपेंडिंग ऑन द लेवल को वाली टर्म यहाँ पे आ रही है फॉर दैट, ठीक है, फॉर दैट। जी सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस बाय दिस एग्जांपल। लॉस सबको समझ आ गया? ओके, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीक्लास एसवीएम लॉस। और यहाँ 1 हमने इसलिए फिक्स किया कि 1 को अगर आपको याद हो तो 1 को हम वैल्यू करेंगे यूजिंग WS, रेगुलराइजेशन टर्म होगी, दैट विल बी बेसिकली यूज टू कंट्रोल आवर मार्जिन। तो हमारा जो हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि वो W लेवल करें जो तमाम क्लासेस के दरमियान मैक्सिमम मार्जिन हमें दे। जी जी इसमें जो टर्म जो एक्चुअली में प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं जी जी इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि डॉट प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल को हम उस क्लास को जब तीनों क्लासिफायर रिस्पॉन्स देंगे तो हम बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी क्लासिफायर को देंगे? इसका कॉन्फिडेंस हाँ दैट्स व्हाट हम ये करते हैं कि हम उसका कॉन्फिडेंस बाकी तमाम से एटलीस्ट 1 ज़्यादा हो। वो वैल्यू बड़ी होना फिर बाकी सारी छोटी होना लाजमी है, क्योंकि हमने टेस्ट एग्जाम्पल में उस क्लास को देना है जो सबसे। जी ये क्वेश्चन सबको समझ आया कि हम क्यों चाह रहे हैं जो 2 क्लास उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हो? वो इसलिए कि जब हमारे पास टेस्ट एग्जाम्पल आएगी तो हम उसे तमाम क्लासिफायर से गुजारेंगे और जिसका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होगा हम उसे वो देंगे। तो हम ट्रेन इस तरह करना चाहते हैं कि जब डॉग का है तो डॉग वाले का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब कैट वाला आए तो कैट वाले का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बाकी तमाम के साथ, और एटलीस्ट कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 एटलीस्ट मैंने यहाँ लगा जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है। ये क्लियर है?
So here it is. Okay, मैं इसको अगली एग्जांपल से. So this is basically a loss function. So max of 0 comma, ये यहाँ पे नोटेशन को जरा गौर से देखिएगा. For a given example I, for a given training example I, we will sum over all classes except y of I. ये उसको छोड़ दे. अगर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? वन ऐड होगा, जीरो ऐड होगा. f of 1 minus f of 1 plus 1 ऐड होगा. तो कांस्टेंट ऐड हो रहा है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई, लेकिन ये आपको टर्म्स में लाना चाहिए. फॉर 1 example I, we will be summing over all classes except the 2 class label. उसमें क्या होगा कि 0 का अब I आपकी यहाँ पे आएगी. दिस विल बी सेकंड टर्म. वी विल टेकिंग द डिफरेंस ऑफ I y of I आपका ट्रू लेबल है. y of I क्या है आपका ट्रू लेबल. सो यू विल बी टेकिंग f of ट्रू लेबल माइनस f of ऑल अदर लेबल एक्सक्लूडिंग द ट्रू लेबल्स प्लस डेल्टा. डेल्टा को हमने यहाँ पे फिक्स किया 1. ओके. और ये आपको मैंने पहले कहा कि इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ योर MultiClass SVM loss function 1 minus w of I w transpose x of I. वहाँ लिखा हुआ है, क्लियर चला गया. ओके. सो आप क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट क्लास एंड इनकरेक्ट क्लास शुड बी एट लीस्ट डेल्टा और 1. और दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि जब आप इधर प्रोजेक्शन लेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्कोर फॉर द करेक्ट क्लास है इट शुड बी डेल्टा अवे फ्रॉम स्कोर फॉर द नेगेटिव क्लासेस फॉर ऑल अदर क्लासेस. दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स व्हिच यू आर ट्राइंग टू डू. क्लियर? ओके. समझ गया कि डेरिवेटिव अभी आपने निकालना है, क्विज होगा. ठीक है. सो यू शुड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. सो लेट्स सपोज डेल्टा मेरे पास 10 है. डेल्टा क्या है? 10 है. और y of I जो है वो 0 है. निकालेंगे. What will be loss? वो जो एग्जाम्पल है वो 0 क्लास को बिलोंग करती है. दिस इज y of 0, दिस इज y of 1, दिस इज y of, दिस इज f of 0, दिस इज f of 1, दिस इज f of 2. निकालेंगे. लॉस. जी घड़ी खराब. दो कैसे बोलोगे? खराब आधा घंटा पीछे रखो. सिर्फ 13 कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? 0. 13 F0 है. दिस इज योर F0, दिस इज योर F1, दिस इज योर F2. और y of I आपको कौन सी क्लास बिलोंग करता है? डेल्टा 10 है. जी लिखें क्या है लॉस? इट विल बी मैक्स ऑफ बोलें 0 का F2 minus F0 plus 10. क्या था? एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? सबको समझ आई है? तो मेरी ट्रू क्लास की कौन सी थी? 0 एग्जाम्पल की. ith एग्जाम्पल की 0. तो दैट विल बी कमिंग एज हियर और बाकी सारे इस तरफ आ रहे. सो दैट इज इट. -7 -13 plus 10 कोई पेनल्टी ऐड नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी उससे क्योंकि 0 क्लास -7 से फॉर्दर है. और 13 और 11 के दरम्यान वंस अगेन डिस्टेंस 2 का है जो कि डेल्टा से छोटा है. कितना छोटा है? 8 यूनिट्स छोटा है. तो 8 की पेनल्टी उसके ऊपर क्या होगी? ऐड होगी. सो दैट्स व्हाट इट इज डूइंग. ओके. सो कोड आप लिखें. सो नाउ कम्स द रेगुलेशन.
So regularization is basically used to encode our preference. कि हम अगर आपको याद हो तो W का कोई सा भी वेट अगर मैं W को से मल्टीपल लेना शुरू करूँ तो will also give me the correct result. So what we like to do कि हम W के अंदर preference encode करना चाहेंगे by using regularization. और regularization के जरिए से हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को कंट्रोल करेंगे. याद है सबको? अगर मैं लैम्डा बढ़ाना शुरू करूँ तो क्या होगा? Increasing lambda. ये है A plus lambda times B. So I have to minimize this. अगर lambda tends to infinity, अंडर फिटिंग करेगा और फिटिंग करेगा. क्यों अंडर फिटिंग करेगा? जी. सो क्योंकि ये लैम्डा अगर बहुत बड़ा होगा तो आप इस टर्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करें. तो वो जो बेसिकली आपने क्या है W, तो W क्लोज टू 0 होंगे तो दे विल स्टार्ट अंडर फिटिंग. ठीक है. सो अब अगर लैम्डा क्लोज टू 0 होगा तो दैट्स बेसिकली यू आर गिविंग इट मैक्सिमम फ्रीडम. So the maximum possible freedom you can have. ये बात सबको समझ आती है ना? So we have seen it in a complete detail. कि अगर मेरे पास A plus lambda times B हो तो lambda tends to infinity. तो अगर इस पूरी टर्म को मैंने मिनिमाइज करना है तो ये जो इंफिनिटी है उसके साथ ये वाली टर्म सारी क्या होगी? ये इसको मिनिमाइज मैं उसी को कर सकता हूँ जबकि दूसरी टर्म क्या होगी? क्लोज टू 0. तो क्लोज टू 0 का मतलब ये है कि हम रेगुलाइजेशन वेव्स पे अप्लाई कर रहे हैं. तो क्लोज टू 0 का मतलब है वेव्स मेरे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्लोज टू 0 हो जाएंगे. So my classifier will start under fitting. लेकिन अगर lambda tends to 0 हो तो फिर अब जो मेरा सारा फोकस है वो किस पे होगा? डाटा टर्म पे होगा, रेगुलाइजेशन टर्म पे नहीं होगा. तो I can have complete freedom and I can choose whatever the ways it suits me. शायद मैंने आपको लेवल कर्व्स याद है सबको? मैंने आपसे ये कहा था कि आप डिफरेंट किस्म की रेगुलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. आप L1 इस्तेमाल कर सकते हैं, L2. L1 का फायदा क्या होता है? वो फीचर सिलेक्शन. जी L1 आपको स्पार्स सॉल्यूशन देता है. अगर मैं L1 रेगुलाइजेशन इस्तेमाल करूंगा तो आई विल बी गेटिंग स्पार्स सॉल्यूशंस. और अगर L2 इस्तेमाल करूंगा तो आई विल बी गेटिंग डिफ्यूज्ड सॉल्यूशन. बात समझ आ रही है सबको? तो यहाँ आपकी जो रेगुलाइजेशन है वो W का कोई सा भी नॉर्म हो सकती है. W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W0 हो सकता है. लेकिन हम W1 नॉर्म 1 इस्तेमाल करेंगे या नॉर्म 2 इस्तेमाल करेंगे. नॉर्म 1 हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें स्पार्स वेट्स चाहिए होंगे और नॉर्म 2 हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें डिफ्यूज वेट्स चाहिए होंगे. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एक्स मेरा ये था, मेरे पास 2 W है, एक W1 है, एक W2 ये है. इसका L2 नॉर्म निकालेंगे, इसका L2 नॉर्म निकालेंगे. L2 नॉर्म निकालना है W का. अभी W1 मेरे पास ये है, एक W2 मेरे पास ये है. इन दोनों में मैं डॉट प्रोडक्ट में x के साथ तो आंसर एक ही आता है. आंसर क्या था? सेम, जो कि क्या है? 1. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं L2 रेगुलाइजेशन इस्तेमाल करूँ जो कि W2 नॉर्म है तो मेरा क्लासिफायर कौन सा W प्रेफर करेगा? ये वाला या ये वाला? सवाल आप लेंगे करेंगे डॉट प्रोडक्ट ले. क्यों? क्योंकि उसमें 0 है तो वो इसका L2 नॉर्म क्या आता है? इसका L2 नॉर्म क्या आता है? 1.5 मेरे ख्याल में कुछ होगा लेकिन 0.5. तो इन दोनों में से मिनिमम टर्म कौन सी है? 0.5. तो आपका गोल हमेशा क्या होता है? मिनिमाइज करना. तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? ये वाला. तो जो L2 नॉर्म होता है हमेशा वो डिफ्यूज वेव्स आपको देता है, वो कभी भी आपको सिलेक्टेड वेव्स नहीं देगा. अगर L1 लेना होता तो L1 के केस में
दोनों का L1 नॉर्म 1 है, दोनों का L1 नॉर्म क्या आएगा 1, दोनों का L1 नॉर्म क्या आएगा 1 एंड इट विल प्रेफर इस दिस केस में वो क्या है तो सिर्फ एक फीचर सेलेक्ट कर रहा है कौन सा पहले वाला, इसमें कौन सा फीचर सेलेक्ट हो रहा है पहले वाला, इस केस में कौन सा फीचर इस्तेमाल हो रहा है सारे के सारे फीचर इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट. So L2 regularization will always give you a diffused weights. Diffused weight का मतलब diffuse को समझते हैं distributed. उसकी कोशिश होगी कि सारे और अगर आप diffused weights इस्तेमाल कर रहे हैं तो you can in some sense say that you are achieving a good generalization performance. क्या पता सर वही वाला फीचर दे अच्छा क्लास. Yes, बहुत बड़ा सवाल. So this is why sometimes you have to choose between W1 and W2. It's also a cross validation. लेकिन majority of the problems आप L2 regularization को ही इस्तेमाल करते हैं. आप चाहते हैं weights feature अगर आ रहे हैं तो कोई ना कोई हर feature कोई ना कोई information convey कर रहा होगा. तो I would like to pick all those features and work on that. जी. एक ही फीचर निकाल के देना. L1 एक feature नहीं है. L1 नॉर्म दोनों का 1 है. नहीं मतलब एक वन को तो एडिट है नहीं लाजमी बात नहीं है, लाजमी बात नहीं है. कुछ वंस होंगे कुछ क्या होंगे जीरोज होंगे. L1 के केस में L1 हमेशा आपको कुछ वेट्स W's जीरो देगा और कुछ वेट्स नॉन जीरो देगा, लेकिन L2 आपको हमेशा मेजॉरिटी नॉन जीरो देगा. तो जो नॉन L1 के केस में जो वंस है वो आपके फीचर सिलेक्टेड है, जो जीरो है वो आपके फीचर डिस्कार्डेड है. जबकि यहाँ के केसेस में आपके पास सारे के सारे डिफ्यूज वेट्स होते हैं. जी डिफ्यूज ज़्यादा जनरलाइज कर मैं फाइनल वेरिएट नहीं दे सकता कि ज़्यादा जनरलाइज कर रहा है, बट इट्स प्रेफर्ड इन मैनी ऑफ द सिनेरियोस. क्योंकि से वो 1 और 0 के केस में तो जीरो वालों को निगलेक्ट कर रहा है. तो उस केस में जब आपके पास बहुत बड़े फीचर्स हो ना देन यू माइट बी इंटरेस्टेड कि आप L1 इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास बियॉन्ड में आपके पास थोड़े से फीचर्स हैं तो यू माइट बी इंटरेस्टेड कि सारे इस्तेमाल किए इमेजेस में बहुत ज़्यादा जी होते हैं, लेकिन स्टिल टेक्निकली स्पीकिंग बहुत कम जगह हम L1 रेगुलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं. मेजॉरिटी आपकी L2 रेगुलाइजेशन इस्तेमाल की जाती है. L1 के एक और नुकसान ये L1 को मिनिमाइज करना इज अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि L1 में ना एब्सोल्यूट फंक्शन है. तो अगर L1 को मैं ड्रॉ करूँ तो ये वाला फंक्शन आपका, और L2 आपका जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है ये वाला, इसका डेरिवेटिव 0 पे अनडिफाइंड. सो इसको मिनिमाइज करते वक्त आपको यू हैव टू डू अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव या +1 होगा या -1 होगा. इसका डेरिवेटिव x होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x या पॉजिटिव x या क्या होगा नेगेटिव x. ये बात सबको समझ आती है. तो L1 को टेक्निकली इट्स अ लिटिल हार्डर टू मिनिमाइज देन L2, तो वी यूजुअली गो विद L2. सबको समझ आ गई बात की. सो नाउ सर जो रेगुलाइजेशन टर्म पूरी रेगुलाइजेशन टर्म को मिनिमाइज करके हमारा प्रॉब्लम होता है. ये आपको लॉस टर्म को मिनिमाइज, लॉस में 2 टर्म्स होते हैं, डाटा टर्म्स और रेगुलाइजेशन टर्म, लेकिन उसका भी फैक्टर होता है ना. अगर आपका लैम्डा बहुत बड़ा है तो फिर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बेस रेगुलाइजेशन टर्म को मिनिमाइज करें. अगर आपका लैम्डा छोटा है तो फिर आप इसके ऊपर फोकस करें, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी A+ लैम्डा टाइम्स B, तो B आपकी रेगुलाइजेशन है वेट के ऊपर. अगर आपका लैम्डा बहुत बड़ा है तो आपका सारा फोकस रेगुलाइजेशन के वेट्स को मिनिमाइज करने में, और अगर आपका लैम्डा बहुत छोटा है तो फिर आपका सारे का सारा फोकस डाटा टर्म के ऊपर. ठीक, किसी का भी सवाल यहाँ क्लियर है? समझा समझ आ रही? ओके. So far we have seen this. So we have a score function and we have a loss function. यहाँ loss में 2 आएगा, 2 सिग्मा आ रहा है, दूसरा सिग्मा आ रहा है. जी, ये पहला सिग्मा तमाम एग्जाम्पल्स के लिए और फिर ये अल्फा, और ये डेल्टा हमें 1 की जगह लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के हम इसे 1 से रिप्लेस करते हैं. हाइपर पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यार मैंने पहले प्रूव किया था, मैं दोबारा यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ कि अगर मैं W's बढ़ाऊंगा तो मेरा लैम्डा डिक्रीज करेगा. ठीक है, डेल्टा डिक्रीज करेगा. और जब मैं W छोटे करूंगा तो मेरा डेल्टा बढ़ेगा.
इस डेल्टा को इनडायरेक्टली मैं डब्ल्यू के जरिए कंट्रोल कर सकता। तो बजाय इसके कि मैं दो हाइपर पैरामीटर रखूं लैम्डा और डेल्टा, इसको मैं क्या कर देता हूँ फिक्स 1, और इसको फिर मैं लैम्डा के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो यू कैन सिंपली डू अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ दैट कि आपका जो मार्जिन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी वेट्स के। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि दो हाइपर पैरामीटर्स में लैम्डा और डेल्टा, आप इसको फिक्स कर देते हैं 1 पे और अपने मार्जिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लैम्डा के जरिए, क्योंकि लैम्डा आपके वेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे जैसे तो दैट्स व्हाई यू फिक्स इट 1 एंड यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट लाइक दैट। जी, किसी को कोई और सवाल हो? ये सब कुछ समझ आती है? ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? सो दैट्स व्हाई एक दफा मैंने प्रूव किया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका मार्जिन जो है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो डब्ल्यू है। तो आपका गोल मिनिमाइज करना होता है डब्ल्यू को। डब्ल्यू मिनिमाइज करेंगे आपका मार्जिन बढ़ेगा, और डब्ल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिन ज़्यादा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ओके, सो हियर इज माय कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो कि हमें चाहिए। मेरे पास क्या है, मेरे पास एग्जाम्पल थी एक्सल, मेरे पास एग्जाम्पल थी ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक्सल एंड वाई साइड, और अब मैं क्या लर्न कर रहा हूँ डब्ल्यू। इस डब्ल्यू के लिए बाइस ऑलरेडी इंक्लूडेड, लेकिन हम बाइस और डब्ल्यू को सेपरेट रखेंगे, और उस डब्ल्यू एक्स ऑफ आई और वाई ऑफ आई को डिफाइन करके मैंने अपने स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन किया, फिर इनका कॉम्बिनेशन बेस करके मैंने क्या डिफाइन किया, लॉस फंक्शन। और अब अगला मेरा स्टेप क्या है? जी बोले, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना। लेकिन लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने से पहले मैं एक और लॉस फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ जिसे हम कहते हैं सॉफ्टमैक्स लॉस। जो अभी तक हमने लॉस पढ़ा वो या स्कोरिंग फंक्शन पढ़े, उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। दे कैन हैव एनी वैल्यूज, दे कैन हैव -∞ से लेके +∞। सिग्मॉइड क्या है सबको? सिग्मॉइड क्या कहता है? 0 और 1 के दरमियान। तो हम उसे इस्तेमाल इसलिए करते थे कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू क्लास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू क्लास 2, तो हम अपने उस मीडियन क्लासिफायर को उस स्कॉचिंग फंक्शन से गुजारते थे, एंड इट विल गिव अस probabilities in the 0 and 1. So softmax is that classifier. Instead of having infinite magnitudes, हम क्या चाहेंगे, हमें probabilities मिल जाए। तो probabilities के साथ काम करना ज़्यादा आसान है relative to working with the magnitude. So for that we are going to use softmax classifier. So softmax classifier को understand करना बहुत आसान है। आप इससे मेरे साथ थोड़ी देर रहना, and I am going to explain कि softmax classifier क्या होता है। So let's go and see. So होगा कुछ भी है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को सिग्माइंग का। ठीक है, so होगा क्या, मेरे पास डब्ल्यूज है, याद है सबको? तो दिस इज माय डब्ल्यू, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहा हूँ, एक्स के साथ, और इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, बायस, और इन सबको मैं क्या कह रहा हूँ, एफ्स। इन सालों में मैं क्या करूँ, एफ। ज़्यादा क्लियर है सबको बात? किसी को यहाँ तक कुछ चीज़ क्या समझ लगी? Everybody agrees with this? So softmax classifier considers the output of these classifiers. ये जो f है, इनको वो कंसिडर करता है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको जरा समझिएगा। क्या मतलब है? They are unnormalized log probabilities. ये जो मेरे पास f आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, unnormalized log probabilities है। और सॉफ्टमैक्स का गोल ये है कि वो इन सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, normalized probabilities में। सो हमारा गोल ये है कि we should be converting it into normalized probabilities so that sum of all classifiers should be, इन तमाम का सम प्रोबेबिलिटीज देने के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो उस क्लास को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सो नाउ सॉफ्टमैक्स टेक दिस अननॉर्मलाइज्ड लॉग प्रोबेबिलिटीज और इनके ऊपर 2 स्टेप्स परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म्स 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में वो लॉग का खात्मा करता है। पहले स्टेप में वो किसका खात्मा करता है, लॉग का।
और दूसरे स्टेप में वो अननॉर्मलाइज की बजाय उसको किस में कन्वर्ट करता है, नॉर्मलाइज में। तो लॉग का खात्मा कैसे हो सकता है? लॉग एंटी लॉग क्या होता है? एक्सपोनेंट। सो एट स्टेप 1 we will simply go and take exponent of it. इसको लॉग क्यों कहा? क्या? हम इसको लॉग क्यों कहते हैं? अननॉर्मलाइज लॉग प्रोबेबिलिटी में अब उसका एक खास रीजन है, इट कम्स फ्रॉम प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैं पिक्चर को आधा तक करके आपको बता रहा हूँ। So just you have to just believe that I'm in one normalized log probabilities. तो अगर वैसे पीछे क्या तो start creating intelligence. यहाँ पे जो लीनियर आउटपुट क्लासिफायर की जो लीनियर आउटपुट है उसका मान नॉर्मलाइज लॉग प्रोबेबिलिटी। तो लॉग का खात्मा करने के लिए हमने क्या ले लिया? एक्सपोनेंट। तो अब मेरे पास ये खत्म होगा, क्या रहेगी? अननॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज। तो अननॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज को सम 1 लेना बहुत आसान है। वो मैं क्या करूँगा, सबका सम लूँगा और हर एक को डिवाइडेड बाय टोटल सम से कर। सो दैट इज माय सॉफ्टमैक्स, दैट इज माय सॉफ्टमैक्स। कितना मुश्किल है सर? सिग्मॉइड नहीं है? सिग्मॉइड से फिर क्लास के लिए वो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 यहाँ में हर क्लास की प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 क्या होगी? एक्सपोनेंट ऑफ f of i divided by sum of सर हर किसी सिंगल को सम से डिवाइड करेंगे। yes। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 क्या होगी? इट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ f1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3। क्लियर? सो दैट्स इट, दैट्स सॉफ्टमैक्स। एवरेज हो गया, है एवरेज हो गया। एवरेज होगी, एवरेज सम आपने प्रोबेबिलिटीज सबका सम होने वाला करना तो क्या करते हैं, सबका सम लेते हैं नॉर्मलाइज करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अभी भी समझ गए? अच्छा ठीक, मेरा सिग्नल कमजोर है। ये क्लियर है सबको? सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द आउटपुट ऑफ क्लासिफायर टू अ प्रोबेबिलिटीज। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी, उसमें हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी होगी। 3 क्लासेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 विल बी इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 किसके इक्वल होगा? डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ f of i, and probability of class 3 किसके इक्वल होगा? एक्सपोनेंट ऑफ f3 divided by sum of i exponent of f of i। एवरीबॉडी समझ आ गई सबको? इन सब का सम क्या होना चाहिए? अब बहुत आसान है। अब मैं ये कहूँगा इन सब में जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो उस क्लास को बिलोंग करे। एवरीबॉडी, सो नाउ दिस इज माय सॉफ्टमैक्स। किसी और सवाल यहाँ तक किसी को नहीं समझ आएगी? सर जी। उसमें मसला क्या था जो ये सॉफ्टवेयर? जी बहुत उम्दा सवाल। उसमें मसला ये था कि हमारा जो आउटपुट आती थी वो कोई भी वैल्यू हो सकती, ठीक है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, वो कॉन्स्टेंट आउटपुट नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? कॉन्स्टेंट आउटपुट। और दूसरा हम एक दूसरे से रिलेटिव डिस्टेंस यूनिट वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर मेरा डब्ल्यू स्केल होगा यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो आएगी वो हमेशा रिलेटिव होगी। आप बता सकते हैं कि ये उससे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको भी सर हम कर सकते थे, हमने उसी को किया है, एक्सपोनेंट कर दिया। वो हमने इसलिए उसका एक रीजन है, प्रोबेबिलिटीज है, दिस इज वन वे यू कैन डू एनी वे। किसी और तरीके से करें, प्रोबेबिलिटीज अगर सम वन हो तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटीज है। लॉस फंक्शन की सिंपल हो रहेगा जी। अब उसका लॉस फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ। अब सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो अब मैं जो लॉस फंक्शन लिखूंगा वो भी डिफरेंट होगा देन द लॉस फंक्शन आई वाज राइटिंग अर्लियर। अब जो मैं लॉस फंक्शन लिखूंगा उसे हम कहते हैं लॉग लॉस। लॉग लॉस याद सब? सो नाउ द लॉस फंक्शन आई विल बी राइटिंग ये मेरा स्कोर फंक्शन है सॉफ्टमैक्स। अब ये मेरा स्कोरिंग फंक्शन, अब मेरी स्कोरिंग फंक्शन के आउटपुट प्रोबेबिलिटीज होंगी, ना कि सिंपल लीनियर क्लासिफायर्स के आउटपुट होंगे। एवरीबॉडी ओके, सो नाउ अगर आपको लॉग लॉस याद हो तो अगर मेरी एग्जांपल 1 क्लास 1 को बिलोंग करती है और एग्जांपल 2 किसको बिलोंग करती है? क्लास 2 के। तो मैं क्या चाहूंगा? मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट हो वो एग्जांपल 1 में
क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबका सम 1 है तो मैं बाकियों के बारे में फिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में फिक्र करूंगा, 2 क्लास के। क्योंकि अगर 2 क्लास की मैक्सिमम है तो बाकी की ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये बात सबको समझ आती है कि अगर इसकी 1 है तो बाकी की सभी ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 होगी। इसी के अंदर सेम हो सकती है क्या बता सारी प्रोबेबिलिटीज? नहीं, सारी प्रोबेबिलिटीज हाँ सेम हो सकती है 0.3 0.3 0.3, बट इसका मतलब इसकी कम है। तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा लॉस फंक्शन में ये चीज़ इम्पोर्ट होनी चाहिए, अगर मेरी एग्जाम्पल क्लास 1 को बिलोंग करती है तो आई शुड हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये क्लोज टू 1, प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1। और अगर एग्जाम्पल 1 क्लास 2 को बिलोंग करती है तो इट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 विच शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी क्लोज टू 1। अगर वो 1 से जितना दूर होती जाएगी प्रोबेबिलिटी, हम उसके ऊपर उतनी प्रोबेबिलिटी आएगी, और जितनी वो 1 के नजदीक होती जाएगी हम उसके ऊपर उतनी प्रोबेबिलिटी कम करते जाएंगे। याद है सबको? सो आई एम गोइंग टू यूज लॉग लॉस, और लॉग लॉस इज बेसिकली हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की लॉग लॉस के ऊपर। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द फाइनल एक्सप्रेशन, और फाइनल एक्सप्रेशन में लॉस ऑफ क्लास एग्जांपल आई इज इट इज माइनस लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्लास ऑफ आई एग्जांपल। So it is minus log of probability of correct class of ith example. Now I am going to explain graphically. ठीक है? So ये सब कुछ समझ आता है? So now let's see. So let's suppose मेरी एग्जाम्पल 1 ये थी, ये क्लास 1 को बिलोंग करती है। कौन सी क्लास को? क्लास 1 को। और प्रोबेबिलिटीज भी आती हैं 0.1 0.7 0.2। ओरिजिनल क्लास क्या थी? 1। मेरा क्लासिफायर कौन सा क्लासिफायर मैक्सिमम क्या था? 2। सो देयर इज इट। और मेरी एग्जाम्पल 2 लेट्स सपोज इट बिलोंग्स टू क्लास 3 और इसमें आता है 0.5 0.2 0.1। अब ओरिजिनल मेरी एग्जाम्पल कौन सी क्लास बिलोंग करती थी? 3 को। और क्लासिफायर कौन सा क्या है? 1। So now मेरी जो loss function होगा वो ये होगा कि for a given example I will try to maximize correct class probabilities. I will try to maximize correct class probabilities. That is my. So अगर आपको याद हो तो जो log का plot है, log of 0 क्या था? log of 0 क्या था? log of 0 1 जी। सो जरा बहुत से देखिए, लॉग ऑफ 1 होता है 0 और लॉग ऑफ 0 क्या होता है? सिर्फ इन्फिनिटी, नहीं माइनस इन्फिनिटी। और मेरा गोल है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्लास को क्या करूं? मैक्सिमाइज करूं। अब अगर मैं ट्रू क्लास का लॉग लूं और वो क्लोज टू 0 है, इसका मतलब है मुझे कोई प्रोबेबिलिटी ऐड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो क्लोज टू अगर ट्रू क्लास की प्रोबेबिलिटी 1 आए तो हम कोई प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्लास 1 हो तो हम कोई प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्लास क्लोज टू क्या हो? 0 हो तो 0 हम कितनी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे? माइनस इन्फिनिटी। सो दैट इज माई लॉस, दैट्स लॉग लॉस। बात समझ आ रही सबको? तो अगर इस केस में मैं लॉस लिखूंगा इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1 माइनस 1। अभी मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो माइनस लेने का मकसद ये कि मैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को किसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। बात समझ आ रही सबको? मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो लॉग ऑफ 0.1 क्या होगा? दैट इज द पेनल्टी एनिमैटिक। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू क्लास यू होती फिर मैं कौन सी पेनल्टी ऐड कर रहा हूँ? लॉग ऑफ 1 जो कि क्या होगा? 0। और लॉग ऑफ 0.1 ये बहुत बड़ी पेनल्टी है। हम उसे कह रहे हैं कि देखो तुमने एक कसूर किया, गलती की है, सो यू शुड बी एंड यू मस्ट बी पेनलाइज्ड। यहाँ भी वन से वही लॉस होगा। एग्जाम्पल 2 की लॉग क्या लॉस होगा? लॉग ऑफ 0.1 क्लास 3 की प्रोबेबिलिटी, एक क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। अब मेरा गोल ये है कि मैं ऐसे WOs सिलेक्ट करूँ जो कि करेक्ट क्लास को अंदर एक एग्जाम्पल को क्लासीफाई करने में मैक्सिमाइज हो। ये बात सबको समझ आती है? तो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे। तमाम प्रॉब्लम क्या रहेंगे?
तो इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, माइनस। अब सर इसका प्लॉट देखिएगा, लॉग का प्लॉट ये है 1 और 0 की तरह, लॉग ऑफ 1 है, ये 0, 1 लॉग ऑफ 1 करता है, 0 लॉग ऑफ 0 करता है माइनस इंफिनिटी। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा माइनस के साथ तो ये मेरा लॉस भी बन जाएगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्लास बिलोंग करना 1 है तो हम उसे कोई पेनल्टी ऐड नहीं करते, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू क्लास बिलोंग करना कम होती जाती है, 0 के नजदीक जाता जाएगा, हम उसके ऊपर उतनी पेनल्टी ऐड करते हैं। दैट्स इट, दैट्स द लॉ क्लॉज। बात समझ आ गई सबको? टाइम है? ओके, सो वी स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा अपलोड होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉ क्लॉज ऑफ सबको इक्वेशन समझ आती है। आप घर वापस आए और मैं आपके साथ नोट्स का लिंक भी शेयर करूंगा, यू शुड गो एंड स्टडी दोज नोट्स, ठीक है। एंड कल हमारी जो क्लास है, ओके, आई विल ट्राई टू रीशेड्यूल द क्लास क्योंकि मैंने क्लास मिस की।